یہاں پہ بہت اہمیت عزت کی ہوتی ہے، تو وہاں پر کسی کو جو ہے وہ سینشور کرنا از جسٹ ناٹ کہ آپ نے اس کو صرف ڈانٹ دیا، اٹس اے وارننگ لیٹر اور یہ سب کام ریٹن میں ہونا چاہیے. تو وہ آپ اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی انکریمنٹ یا پروموشن کو روکا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر کوئی کمپلینٹ کو ڈیمیجز ہوئے ہیں، یعنی اگر وہ ڈیمیجز کوئی فیل کرتی ہے، کوئی ڈیمیجز ہے یا فیل کرتا ہے، تو وہ اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے بھی وہ ریکوری کہاں سے ہوگی، وہ بھی ایکیوزڈ. کریں، اور وہ ابھی انشاءاللہ بہت جلدی آپ اس کو بھی ایکٹیو دیکھیں گے. اس کے علاوہ میں آپ کو اور اپڈیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم اس میں ایپ بھی لا رہے ہیں. اپنی ہماری ایک ایپ ہے، موجود ہے، لیکن ہم اس کو بھی اور مزید ایڈوانس فیچرز کے ساتھ لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، تاکہ اس کو ہم جو ہے اپنے حساب سے ایک پروسیس کے ذریعے رکھیں، اور وہ جو خواتین ہیں جو ہمارے پاس آنا چاہ رہی ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے تک پہنچنا چاہتی ہیں، تو ہم ان کو بھی ایزیلی اویلیبل اس میں ہوں. لیکن چونکہ اگر آپ اس میں دیکھیں، یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے، اس کی جو ڈیمانڈس ہیں، جو اس کی جو پروسیس ہے، وہ بڑا سینسٹیو بھی ہے. کیونکہ یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ ہم نے فوڈ پینڈا میں آرڈر کر دیا اور ویب سائٹ پہ ہم نے کوئی اس کی ایپ استعمال کر لی. چونکہ یہ کسی کے ساتھ، کسی کی زندگی اور کسی کے کیریئر کے ساتھ بھی وابستہ ہے. چونکہ اس میں اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی عورت ہے یا کوئی مرد ہے، کوئی اتنا بڑا ایلیگیشن لگاتا ہے، تو اس کو فیکلٹی آف مائنڈ استعمال کرتے ہوئے، جرح کرتے ہوئے اس کو اس آؤٹ کم تک، اس رزلٹ تک پہنچنا ہوتا ہے کہ جس طریقے سے خدا نخواستہ اگر کوئی چیز ہے تو اس کو ہم ثابت بھی کر سکیں. تو اس لیے جو ہم اگر کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہم وہ ساری چیزیں اپنے مد نظر رکھیں. زیادہ تر مرد اور حضرات بہت اچھے، بہت کوآپریٹو، بہت خیال کرنے والے لوگ ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں یہ برائی جو ہے پائی جاتی ہے، جس کا تدارک بہت ضروری ہے. وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنی خواتین کو گھروں کی چار دیواری سے باہر نکالیں. ہم اپنی بچیوں کو تعلیم کے میدانوں میں ایک سیفر جو ہے پلیس ان کو دیں، ایک صاف ستھرا ماحول دیں، تاکہ وہ تعلیمی میدان میں بھی آگے آئیں، اور پھر اپنی صلاحیتوں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں، تو وہ پھر کسی بھی شعبے سے اگر وہ منسلک ہونا چاہیں تو وہاں پر بھی ان کو ایک صاف ستھرا، خوف و ہراس سے پاک ماحول ہم دیں. تو ہراسمنٹ جو ہے، میرا خیال ہے یہ ایک ہرڈل ہے جو ہماری سوسائٹی میں خواتین کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. تو ہمارا ادارہ ایک شاہ نواز طارق سر کا ادارہ یہاں سندھ میں، اور اسی طرح بلوچستان کا میں ہمارا ادارہ ایک جہاد کا میں سمجھتی ہوں کر رہا ہے. خاتون جو ہے وہ ہونا بھی ایک جرم ہے، سوری ٹو سے، کیوں ہمارے ذہن بند ہیں. ہم وہ ادب احترام والا ماحول جو اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ بھی نہیں دیتے، اور جو کانسٹیٹیوشن نے پروٹیکشن دی ہے وہ بھی نہیں دیتے. ہم ہر چیز پہ ایک مین ڈومینیشن والا سلسلہ ہے. نوکریوں کا معاملہ ہو، ورکنگ آورز کا معاملہ ہو، فیسلٹیز کا معاملہ ہو، ہم ہمیشہ مردوں کو پریفرنس دیتے ہیں کہ خاتون روئے گی گائے گی، کام نہیں کرے گی. ہم نے پہلے سے ایک ذہن اپنا بنایا ہوتا ہے. جبکہ اب خواتین نے پوری دنیا میں سروے میں یہ ثابت کیا ہے کہ ورکنگ ایفیشنسی خواتین میں زیادہ ہے مردوں کی نسبت. کرپشن کا لیول بہت کم ہوتا ہے خواتین میں، یعنی کہ 99% خواتین پہ ٹرسٹ کر کے اب فائنینشیل ایشوز بھی دے سکتے ہیں، دوسرے معاملات بھی ان کے حوالے کر سکتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں مردوں کی جو ہے نا پرسنٹیج کوئی اچھی نہیں آئی تھی.
बड़ा एक वास्ट हुआ था। और उसके बाद ये कहा नहीं जी ये जो सर्वे करने वाले हैं बाहर के थे, हमारे पाकिस्तान के तो नहीं थे, कि जी ये जो है ना ये प्रो वुमेन है और इन्होंने ये किया है, लेकिन वो बात सच्ची है, उसमें कोई ऐसी गलत बात नहीं थी। हम अपने माशरे में देखते हैं, हम अपने ऑफिस में देखते हैं, माशाल्लाह हर पहलू में, हर जगह पे ख़वातीन ने अपनी मेहनत से, अपनी हिम्मत से, कारकर्दगी से अपना लोहा। हम सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो भी मेरे सिस्टर कंसर्न्स, जो सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस कुछ मैंने देखा है यहाँ पे, टेक्सटाइल सेक्टर बैठा है, फार्मा सेक्टर है, बहुत सारे और भी निजी इदारे यहाँ पे उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आए हुए हैं। तो वो इस मकसद को इंशाल्लाह हम आगे लेके चलेंगे। जो शमा आपने जलाई है, जो मशाल रोशन की है, इसको हम आगे अपने अपने इदारों में लेके जाएंगे। और वैसे भी जो हैरेसमेंट पॉलिसी आई है एक्ट 2010 और उसकी जो इन्फोर्समेंट है वो हमने ऑलरेडी अपने इदारों में शुरू कर दिया है। उसमें एंटी हैरेसमेंट पॉलिसीज़ हमने डिस्प्ले कर दी हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा विमेन वर्कफोर्स। आप बलूचिस्तान के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, वहाँ की कुछ थोड़ा सा हमें बताएं। फ़रखंदा असलम नाम है मेरा और करंटली मैं काम कर रही हूँ गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट, और गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट सपोर्ट कर रहा है इस टाइम बलूचिस्तान के अंदर डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को। और मैं एज अ कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही हूँ इस टाइम ओम्बड्सपर्सन बलूचिस्तान और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में एज अ कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन ऑफिसर। और आज का जो प्रोग्राम था, पहले तो थैंक यू ओम्बड्समैन सिंध का जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, बड़े शॉर्ट नोटिस पे बड़ा इंफॉर्मेटिव प्रोग्राम था। और जो बुनियादी चीज़ हमेशा हमने देखा है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि लॉज बनते हैं लेकिन उनकी इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा से गैप रहा है। तो इस दफ़ा जो नज़र आ रहा है, जो पाकिस्तान की जो अपनी कमिटमेंट है वुमेन को जो एक सेव और कंडूसिव एनवायरनमेंट देने के लिए जो एक्ट पास हुआ था 2010 का, उसके बाद जो बलूचिस्तान ने फिर 2016 में उस एक्ट को रिफ़ाइन करके थोड़ा सा बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया। तो उसको इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से जो एफ़र्ट किया जा रहा है कि ख़वातीन को जिस तरह से आज जो मुझे बड़ी अच्छी बात, डिफरेंट प्रोविंस में हम गए हैं, काम हो रहा है लेकिन एक विज़न के साथ बहुत कम लोग काम करते हैं। जिस तरह से आज शाहनवाज साहब ने बात की कि जो हमारा विज़न है कि आप कंडूसिव एनवायरनमेंट, सेफ और फ्रेंडली एनवायरनमेंट वुमेन को दें जहाँ पे वो कंट्रीब्यूट करें विद डिग्निटी और ऑनर के साथ। ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपना विज़न रखते हैं तो मेरे ख़्याल में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में, इसकी इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग के अंदर इसके ब्लॉक्स को रखने में बड़ी आसानी होगी। और दूसरा ये है कि एक चीज़ जो मुझे आज के प्रोग्राम में कुछ आइडियाज़ भी मिले सिंध से, जो कि हम जाके बलूचिस्तान के अंदर उनको डिस्कस करेंगे, पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। एक जो चैलेंज मुझे अभी बलूचिस्तान में भी नज़र आ रहा था, सिंध में भी, इंक्वायरी कमेटीज़ का जो उनकी एक्टिवेशन और उनको किस तरह से फ़हाल किया जाए कि वो अपना कंट्रीब्यूट दे, क्योंकि एक्ट के अंदर उनके पास जो पावर्स दिए गए हैं उनको यूटिलाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि ओम्बड पर्सन अपने लेवल पे काम करेगा, अगर डिपार्टमेंट के लेवल पे ये फैसिलिटीज़ मौजूद है उनको किस तरह से एक्टिवेट किए जा सकते हैं, उसके लिए मैं समझती हूँ कि हम सिंध और बलूचिस्तान और बाकी प्रोविंस को म्यूचुअली कोई कंसेंसस बिल्ड करके कोई स्ट्रेटजीज़ डेवलप करने चाहिए इंक्वायरी कमेटीज़ को रीएक्टिवेट करने के लिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से। तो श्योर मैं जीपीपी के साथ भी इस चीज़ को डिस्कस करूँगी और फर्दर हम फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज़ को देखेंगे। मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? बिल्कुल, सायरा लेडी मेरा नाम है और गवर्नेंस एंड पॉलिसी प्रोजेक्ट में मैं एज ए जेंडर एंड लर्निंग स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। हम बलूचिस्तान में भी ओम्बड्सपर्सन और वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहे हैं। मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, एंटी हैरेसमेंट सेल्स की कैपेसिटी बिल्डिंग है, अवेयरनेस रेजिंग सेमिनार, फील्ड पे बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो रहे हैं। इसके साथ जेंडर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंप्लीट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे सिंध में स्पेशली ओम्बड्सपर्सन के ऑफिस और इंटीरियर सिंध में जिस तरह से आप लोगों ने अपने अभी रिसेंटली अपने डायरेक्टरेट्स वगैरह इस्टेब्लिश करने हैं और अवेयरनेस रेजिंग देनी है, और जिस तरह से सिंध गवर्नमेंट में एंटी हैरेसमेंट के हवाले से और जिसमें सेक्चुअल हैरेसमेंट स्पेशली सेग्रीगेट करके करवाया गया है, सो ये बहुत खुशाइंद है। और मेरे ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान, हम दोनों रीजन एक ही तरह की चैलेंजेस का सामना है हमें कि सोशल टेबूज़ हैं, बहुत ज़्यादा वॉइस विक्टिम जो है वो वॉइसिंग नहीं करते और बहुत ज़्यादा इसको सीक्रेसी या प्राइवेसी में रखा जाता है जब जब इस तरह के हैरेसमेंट के केसेस होते हैं। सो मुझे लगता है कि
جب تک ہم ایک سیف انوائرمنٹ نہیں دیں گے یا ٹرسٹ بلڈنگ پہ کام نہیں کریں گے, ہم جب تک ان وکٹمس کو ایک سروائیور والی کیٹیگری میں تب تک نہیں لاتے, تب تک ہم یا انسٹیٹیوشن بلڈنگ پہ کام نہیں کرتے, یا ایک اچھا انوائرمنٹ نہیں دیتے, ایکسیس ٹو انفارمیشن ہم نہیں دیتے, یا ان کو اویئرنیس نہیں دیتے کہ اگر ان کے ساتھ اس طرح ان سے مراد کے وکٹمس کے ساتھ اس طرح کی سچویشن فیس آتی ہے ایٹ ورک پلیس, تو ان کو وہ کون سے مینس کو فالو کرتے ہوئے اپنے ان رائٹ کے لیے اسٹرگل کر کے اپنے لیے جسٹس وہ لینا ہے. سو آج کا یہ جو سیمینار ہوا یہ میرے لیے بہت انفارمیٹیو تھا, اور اسپیشلی جس طرح سے ombudsperson پرسن سندھ صاحب کے آفس کی طرف سے اتنے شارٹ نوٹس پہ کارپوریٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر اور کراچی کے اتنے مختلف طبقے سے لوگ آئے ہوئے تھے, اور انہوں نے بھی اپنا نالج شیئر کیا, اس حوالے سے بھی انفارمیشن ملی, اور آپ لوگوں کے آفس کی طرف سے جو اوور آل آپ کے آفس کے اسٹرکچر, اس کے سسٹمز, اس کے آپریشنز اور ان تمام چیزوں کے بارے میں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہمیں آپس میں صوبوں کو بھی ایک دوسرے کے ساتھ انفارمیشن نالج شیئرنگ کرتے رہنی چاہیے, کیونکہ ہم آگے تبھی بڑھیں گے ایز اے نیشن جب ہم ایک دوسرے کے ایکسپیرینس سے سیکھیں گے, اور یہ بہت امپورٹنٹ. اور بہت شکریہ سندھ ombudsperson. سر اس سیکشن کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی ماشاء اللہ جی, اٹ واز اے ویری لرننگ سیشن اور بڑی اویئرنیس تھی, اور پرٹیکولرلی اس میں تھوڑا سا اگر میں انٹروڈکشن میں کرا دوں تو مور دین 3 decades آئی بین ورکنگ ود دی ڈائیورس انڈسٹریز, اور اس میں مختلف کیمیکل بھی ہے, فارماسیوٹیکل بھی ہے, اور کنسٹرکشن انڈسٹری بھی ہے, ایئر وائی ٹیلی ویژن بھی ہے, اس کے علاوہ ڈولنس گروپ بھی ہے. تو میں تو نارملی جو ٹریننگ دیتا ہوں وہاں پہ ود ان دی آرگنائزیشن, تو اس میں یہی چیز زور ہوتا ہے کہ ڈسکریمنیشن نہیں ہو, اور ہر بندے کو رائٹ ہو جو بھی اپنا ڈیو کورس آف ٹائم اپنا وہ پروموشن لے, اور اس میں کوئی جینڈر کا ایسے ڈسکریمنیشن نہیں ہو. اور اس حوالے سے آئی اپریشیٹ آپ کا جو ہے پروونشل ombudsman آفس کراچی, بڑا زبردست کام ہے, اٹس اے ونڈرفل اینڈ ویری ٹریمینڈس جاب, اور آن بیہاف آف دا گورنمنٹ آف سندھ. اور بالکل یہ جو اویئرنیس سیشن آج ہم ہے اس میں کافی معلومات ہمیں ملی ہے, اور انشاءاللہ اس کو ہم آگے لے کے جائیں گے, اور جہاں بھی کیونکہ آئی ڈو کنڈکٹ اے سیشن ایٹ ڈائیورس انڈسٹریز ٹریننگ کے حوالے سے, تو انشاءاللہ وی وڈ کنوے دس میسج ٹو آل آڈینس ان دا فیوچر. مس صبا, اس سیکشن کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی السلام علیکم, مائی نیم از صبا عمر اینڈ آئی ایم ورکنگ ایز اے HR head and OD with Mustaqim Industries. Mustaqim is one of the biggest group of textile, and as the name suggests میں ایک پرائیویٹ سیکٹر سے تعلق رکھتی ہوں, اور یہ جو آپ کا سیشن تھا which was like the protection against the harassment of the women, یہ ایک بہت ہی نیڈ آف دا ٹائم ہے, بیکاز گلوبلی یہ ٹاپک جو ہے آج کل جو ہے وہ اٹس لائک اے ہاٹ کیک, اور جس طرح فیمیلس کو ہم انکریج کر رہے ہیں, اور جس طریقے سے گورنمنٹ آف سندھ نے یہ پروگرام لانچ کیا ہے, اور ایک جو گیپ ہے بہت بڑا پرائیویٹ اینڈ پبلک سیکٹر کے بیچ میں, اس کو برج کرنے کی ایک بہت اچھی کوشش ہے. اینڈ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی, اور میرے جتنے بھی یہاں پہ کالگس تھے اور فیلوز تھے انہوں نے جوائن کیا تھا فرام HR اینڈ IR سیکٹر, وہ سب یہ کوشش کریں گے کہ جو لرننگس ہم نے آج اس سیشن سے یہاں لی ہیں اس اویئرنیس کو ہم اپنی آرگنائزیشنس میں بھی اسپریڈ کریں, اور کوشش کریں کہ ہیراسمنٹ کو جتنا ہم منیمائز کر سکیں ایٹ آر لیولس وہ ہم کریں, اور ہمیں وہاں کسی ہیلپ کی ضرورت پڑے گی تو ڈیفینیٹلی ناؤ وی نو دیٹ دیر از این آرگنائزیشن وچ ول always support us at government level. So thank you so very much for providing all of us this platform. آج ہمارے ساتھ صوبائی محتسب بلوچستان سے میڈم صابرہ صاحبہ موجود ہیں, اور ان سے ہم سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے. میڈم میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بلوچستان میں سیکشول ہراسمنٹ کے حوالے سے آپ کو کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تھینک یو. دیکھیے بلوچستان چونکہ قبائلی سیٹ اپ ہے, اور مشکلات تو ہمارے پورے پاکستان میں ایک جیسی ہیں. تمام ورکنگ جو خواتین ہیں کام کی جگہ پہ, ان سب کو ایک جیسے ہی حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور درسگاہوں میں بچیوں کو بھی ہراسمنٹ جو ہے اس کا سامنا ہوتا ہے. تو بلوچستان میں بھی مشکلات ہیں. اول تو ہماری خواتین جو ہیں بہت مشکل سے باہر نکلتی ہیں تعلیمی میدانوں میں, اور پھر جب کام کی جگہ پہ آتی ہیں تو ان کو سب سے زیادہ جو بلوچستان میں وہ یہ کہ ہاسٹائل انوائرمنٹ جو ہے, ڈرا دھمکا کے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے, اور ان کو ڈیفیم کرنا, تھریٹس دینا, اور پھر یہ کہ سیکشول ہراسمنٹ بھی ایگزسٹ کر رہی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ برائی ہر جگہ موجود ہے.
अवेयरनेस ना होने की वजह से सामने कम आती हैं। अब चूँकि इदारे बन चुके हैं पूरे बलूचिस्तान, पूरे पाकिस्तान में, और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है, तो ये बुराई सामने आ रही है अब। बहुत शुक्रिया। और मैडम दूसरा क्वेश्चन ये होगा मेरा कि अवेयरनेस के हवाले से सेक्सुअल हैरेसमेंट की स्पेशली, तो वो बलूचिस्तान में आप किस तरीके से उसको मतलब सर अंजाम देती हैं, किस तरीके से, कौन से तरीके अपनाती हैं अवेयरनेस के लिए? देखिए, बलूचिस्तान चूँकि फार फ्लंग एरिया है हमारा, लेकिन उसके बावजूद मैं और मेरी टीम, हम तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में, बलूचिस्तान के तमाम इलाकों में हम इन 3 सालों में जा चुके हैं। चाहे वो हमारा मकरान बेल्ट हो, चाहे हमारा पश्तून बेल्ट हो, ज़ियारत, लौरलाई, किला सैफुल्ला, यूब हो, चाहे हमारा कला डिवीज़न हो, चाहे हमारा रक्षान डिवीज़न हो, हम तमाम बलूचिस्तान में ख़ुद जाते हैं और वहाँ पर सेमिनार्स करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, डीसी ऑफिस में लोगों को जो है इकट्ठा करते हैं। वहाँ पर तमाम जो ख़वातीन अगर काम कर रही हैं NGO सेक्टर्स में, उनको इकट्ठा करके फिर हम अपने कानून पर प्रेजेंटेशन आधे घंटे की अवेयरनेस देते हैं। और फिर जो है ख़ुद भी जाते हैं हम लोग, फिर थ्रू जूम भी कहीं कहीं पर हमने इस तरह के सेशन कंडक्ट करवाए हैं। लेकिन कोशिश किए हैं कि हम ख़ुद जाएं और तमाम यूनिवर्सिटीज़ में, बलूचिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में हम जो है ख़ुद गए हैं। ख़ुद मैं और मेरी टीम जाके वहाँ पर अवेयरनेस कैंपेन चलाई है और कवर किया है। इस लॉ पे अवेयरनेस मैं समझती हूँ जब तक नहीं होगी, जब तक ख़वातीन, बच्चियाँ नहीं जानेंगी कि ये कानून मौजूद है और इस पर अमल दरामद उस सूरत में होगा जब वो सामने आएंगी, इस बुराई के ख़िलाफ़ नो कहना सीखेंगी। और दूसरा आखिर मैं ये पूछना चाहूँगी कि आज आपने एक अवेयरनेस सेशन जो है वो मोहतसिब सूबाई मोहतसिब सिंध में अटेंड किया, उस कुछ आपने उस हवाले से कुछ बोलना चाहें, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, इस हवाले से कुछ बताना चाहें? देखिए, सिंध के जो मोहतसिब हैं सर शाहनवाज़ तारिक, वो शुरू दिन से ही उन्होंने मुझे, मेरी टीम को, मेरे ऑफिस को फुल सपोर्ट दी है और कहीं पर भी कोई भी जो है मामला होता है, मैं उनसे टेलीफोनिक राब्ते में रहती हूँ और उनसे गाइडेंस लेती हूँ। तो ये जो हमारा आज का जो सेशन था उनके ऑफिस में, ये उसी का सिलसिला था कि गुड प्रैक्टिसेस जो हैं हम जाके अपने सूबे में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आज का सेशन भी बहुत ही मुफीद था। सर की और उनकी टीम की मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमें टाइम दिया, उन्होंने हमें हमेशा इनकरेज किया, हमें बताया, और उनकी गाइडेंस की वजह से बलूचिस्तान में आज फुल फ्लेज ऑफिस काम कर रहा है। हम अवेयरनेस के साथ साथ ख़वातीन के केसेस भी वहाँ पर रिपोर्ट हो रहे हैं और उसकी जो है ना फ़ैसले भी आ रहे हैं। तो हम शुक्रगुज़ार हैं सर के, थैंक्सफुल हैं कि उन्होंने हमें टाइम दिया और हमें हमेशा सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच मैडम साबरा साहिबा, जो कि ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाई थी, और हम दोबारा से उन्हें वेलकम कहेंगे सिंध में और स्पेशली सूबाई मोहतसिब सिंध के ऑफ़िस में। मैडम थैंक यू वेरी मच कि आपने अपनी प्रेजेंस से हमारे ऑफ़िस को ग्रेस किया। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। और अभी हमारे साथ इस इदारे सूबाई मोहतसिब सिंध के हेड जस्टिस शाहनवाज़ तारिक साहब मौजूद हैं और इनसे हम कुछ सवालात करेंगे कि सर, आज मैडम साबरा साहिबा जो ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से तशरीफ़ लाई हैं, इस हवाले से आप कुछ बात करना चाहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ मैडम का, मैडम साबरा इस्लाम साहिबा का, कि वो हमारी रिक्वेस्ट पे कोयटा से स्पेशली तशरीफ़ लाएं, क्योंकि पिछले ही दिनों नेशनल वर्किंग डे ऑफ पाकिस्तान गुज़रा है वुमेन के हवाले से। तो हमारी ख्वाहिश थी कि उस प्रोग्राम पे शिरकत कर सकें, लेकिन उस वक्त ये टूर पे थी पूरे बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, और आखिर में उन्होंने मेहरबानी की यहाँ पर आई। तो हमारी कोशिश ये होती है कि क्योंकि इश्यूज़ हरासमेंट का बलूचिस्तान और सिंध का आलमोस्ट सिमिलर है, तो हम पर अपने मामलात को आपस में शेयर भी करते रहते हैं, मशवरा भी करते रहते हैं, क्योंकि ख़वातीन के साथ जो मसाइल सिंध में हैं उससे बढ़कर कहीं ज़्यादा बलूचिस्तान में हैं। तो सबसे पहले तो हमने उनको एक तहफ़्फ़ुज़ देना होता है, एतमाद देना होता है, ताकि वो अपने प्रॉब्लम्स, अपनी जो भी हरासमेंट के मामलात हैं और तकलीफ़ दे मामलात हैं, तो वो हमसे शेयर करें, हमारे सामने आए। तो इससे क्या होता है कि वो जब हम आपस में
प्रॉब्लम शेयर करते हैं, एक दूसरे के ऑफिसेज़ को विज़िट करते हैं, क्योंकि पिछले ही दिनों में इनके ऑफिस में भी कोयटा में प्रोग्राम रखा था जहाँ से पूरे पाकिस्तान के पर्सनस को बुलाया गया था रिलेटिंग टू हरासमेंट। तो इससे क्या होता है कि जब हम आपस में बैठते हैं, शेयर करते हैं इश्यूज़ को, क्योंकि इश्यूज़ आलमोस्ट सिमिलर नेचर के ही होते हैं, लेकिन कुछ अलग अलग हमारा जो सोसाइटी का पस मंज़र है, बैकग्राउंड है, उसके हवाले से कुछ चीज़ें अलग भी होती हैं। तो इससे बहुत अच्छा हमें एक दूसरे को समझने में और मशवरा करने से मामलात को उनके हल करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा होता है कि हम आपस में राब्ते में रहें और एक दूसरे के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ें। तो आज का प्रोग्राम भी इसीलिए अवेयरनेस के हवाले से था, जिसमें मैडम ने अपने शेयर किए जो भी इश्यूज़ थे, हमारे ऑफिसर्स ने भी अपने एक्सपीरियंस के हवाले से उन्होंने भी अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तो इस तरह के प्रोग्राम होते रहें ताकि हमारे कोऑर्डिनेशन भी बढ़े, हमारे मसाइल जो है मिल बैठ के उनको हल करने के लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा हों। बहुत शुक्रिया, हम मैडम के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट पर तशरीफ़ लाएँ कराची। थैंक यू सर। और दूसरा सर ये सवाल होगा आपसे कि वर्किंग ख़वातीन के या वर्किंग वुमेन जो है उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा? देखें, अब वक्त बहुत आगे चला गया है, दुनिया बहुत आगे चली गई है, हरासमेंट जो है वो अब इंटरनेशनल इशू बन चुका है। पहले इसकी वो हैसियत नहीं थी, लेकिन हमारी ख़वातीन सोशल टैबू कह लें, फैमिली बैकग्राउंड कह लें या और इशू कह लें, उसकी वजह से सामने नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले तो उनको ये होता है कि नौकरी से ही उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है, शोकाज़ आ जाएगा किसी न किसी बहाने से और एक प्रोसीडिंग शुरू हो जाएंगी और उनको बहुत ही शार्ट प्रोसीडिंग के बाद नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो इस वजह से ख़वातीन पर खौफ के मारे कंप्लेंट होने के बावजूद भी नहीं आती। लेकिन हमारी उनसे यही दरख्वास्त होगी कि प्लीज़ अपने हकूक़ के लिए लड़ें, सामने आएँ। इस बुराई को ख़त्म करने के लिए जब तक वो ख़ुद सामने नहीं आएंगी, हम मिल के इसके ख़िलाफ़ कोई भी जद्दोजहद नहीं कर सकते। उनको एतमाद बहाल करना होगा ताकि उनके बाद आने वाली जो हमारी ख़वातीन हैं उनको भी एहसास हो कि नहीं, हमारे साथ कोई भी ज़्यादती करे तो हम उठ खड़े हों और एक इदारा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने बनाया है वहाँ जाएं और अपने जो भी उनके ग्रीवांसेस है उनके रिड्रेसल के लिए वो आएँ और कंप्लेंट करें। चुप नहीं रहें, सामने आएँ, हिम्मत करें, अपने हक़ के लिए ख़ुद लड़ेंगे तो हक़ मिलेगा। अगर खामोश रहेंगे तो उससे क्या होता है कि मुल्ज़मान को मज़ीद शह मिलती है। आज एक खातून के साथ ज़्यादती हुई है, कल दूसरे के साथ, फिर तीसरे के साथ, ये सिलसिला चलता रहता है। इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए यही है कि जब तक वो सामने आएँ, आके बेदरेग अपनी बात हमारे सामने बिला खौफ आएँ, अपनी कंप्लेंट लॉज करें और हम कानून के मुताबिक दोनों पार्टियों को सुनने के बाद मेरिट पर उसका फ़ैसला करें। तो हमारी यही इल्तमास होगा कि तमाम अपने बहनों से, बेटियों से कि प्लीज़ अब खामोश ना रहें। जब भी आपके साथ ज़्यादती हो, आपके साथ किसी भी तरह के हरासमेंट हो, तो प्लीज़ सामने आइए, हिम्मत कीजिए। और आपकी इज़्ज़त इसी में है कि बाकी ख़वातीन को भी आप तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करें और अपने मसाइल को लेके हमारे पास आएँ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर।